Okay. In last lecture we are taken here cos hyperbolic x का ग्राफ देखा था. This is the graph of cos hyperbolic x. This is graph of sin hyperbolic x. This is your graph of tan hyperbolic x. Okay, and these are some formula which we use here. In sin hyperbolic x upon cos hyperbolic x is equal to tan hyperbolic x, and 1 upon cos hyperbolic x is equal to sec hyperbolic x. Here a plus b bracket square is equal to what? A square plus 2ab plus b square. Now 1 minus tan hyperbolic x square x is equal to sec hyperbolic square x. Tan inverse of x is equal to 1/2 log of 1 plus x divided by 1 minus x. All are these the formula which we use to solve the examples on hyperbolic function. Okay, I rough this, then we take some example based on our hyperbolic function. ये देखो hyperbolic function के हमने क्या क्या देखा है कि formulas, all formula in terms of your sin and cos, then exponential के form में, sum convert to product, product to sum, then derivative integration. अभी हमने सभी formula आपके hyperbolic के already ले लिए हैं. Now we solve some example which are based on this hyperbolic function. Solve equation 7 cos hyperbolic x plus 8 sin hyperbolic x is equals to 1 for real values of x. इक्वेशन लिखते हैं हम 7 cos hyperbolic x plus 8 sin hyperbolic x is equal to 1. If I divide throughout by cos, divide by so what remain here? 7 cos hyperbolic x divided by cos hyperbolic x plus 8 sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x is equal to 1 upon cos hyperbolic x. If I solve this, then 7 plus 8 sin upon cos means tan hyperbolic x is equal to sec hyperbolic x. Okay. If I squaring on both sides, then 7 plus 8 tan hyperbolic x bracket square if we squaring on both sides, then 49 into 56 twos means 112 tan hyperbolic x plus 64 tan hyperbolic x is equal to sec hyperbolic square x. Okay. So as here is sec square, I convert it into the 1 minus tan hyperbolic square x. Okay. Here 49 plus 112 tan hyperbolic square hyperbolic x. Here 64. This come to this side. So what happened? 65 tan hyperbolic square x, and here minus 1 is equals to 0. So it convert into 65
tan hyperbolic square x plus 112 tan hyperbolic x plus 48 is equal to 0. Okay, now this is a quadratic equation, right? And I solve this quadratic equation. This is quadratic equation in tan स्क्वायर में क्या है आपका, tan हाइपरबोलिक x में क्या है आपका इक्वेशन, क्वाड्रेटिक है. मैं ऊपर का अभी रफ कर देती हूँ जो एग्जांपल्स उन्होंने दिया हुआ था. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम कैसे सॉल्व करते हैं. कंपेयर विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 65, b is equal to 112 and c is equal to 48. tan hyperbolic x is equal to b क्या है आपका, -112 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 112 ब्रैकेट स्क्वायर -4 टाइम. You can solve all this value on calci also. A is 65, B is 48. All divided by 2. A is 65. Okay. So if you solve this equation, you will get here under root of 12544 minus 12480 whole divided by 130, which is equals to -112 plus minus under root of 64 divided by 130, which is nothing but divided by 130. So I get here. अभी मैं ये रफ कर देती हूँ. यहाँ पे हमने क्या क्या किया था एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि हमें ये वाला इक्वेशन दिया था. आई डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स. सो मेरा इक्वेशन tan में कन्वर्ट किया. क्यों कन्वर्ट किया? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स. सॉल्व करना था, मतलब मुझे x के लिए उसकी वैल्यू निकालनी थी. सो फॉर दैट आई कन्वर्ट ऑल दिस इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल. इसके लिए मैंने इसे डिवाइड थ्रू आउट बाय किया एंड देन स्क्वायरिंग किया, जिससे कि मेरा पूरा इक्वेशन tan में कन्वर्ट हो गया. tan में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, जिससे कि मुझे tan हाइपरबोलिक के लिए भी वैल्यू मिल रही है. सो tan hyperbolic x is equal to -112 plus 8 divided by 30, or tan hyperbolic x is equal to -112 minus 8 divided by 30, which is equals to here minus किया या प्लस किया, then you get here -4/5. एंड इफ आई प्लग here, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120/30. सो 12/30. मैं भी ये रफ करती जाती हूँ. यहाँ पे देखो ये स्टेप्स याद रखने, खाली हमने उसे क्वाड्रेटिक में क्या किया है, कन्वर्ट कर किया है. ओके, नाउ सॉल्व करो इसे. ये क्या है आपका, दिस इज योर tan हाइपरबोलिक x. मैं यहाँ पे x एज इट इज tan हाइपरबोलिक इस साइड में आएगा तो इनवर्स हो जाएगा -4/5. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 12/30. ओके, सो फाइंड आउट करो. अभी हमने और एक फॉर्मूला, अभी ये मैं पूरा रफ कर देती हूँ. यहाँ पे हमने क्या किया है, ओनली वी कन्वर्ट इनटू द क्वाड्रेटिक फॉर्म. सिंस आई नो वन फॉर्मूला दैट tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल्स टू
1/2 log of 1 plus x divided by 1 minus x. I just use this formula. So what I get here, x is equal to 1/2 log of x is equal to क्या है 4/5. So 1 plus minus 4/5 divided by 1 minus 4/5. ओके, एंड सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि x इज इक्वल टू 1/2 log of 1 plus 12/13 divided by 1 minus 12/13. देखो हमारे पास हाइपरबोलिक का टेबल नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इसे लॉग में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज इक्वल्स टू 1/2. यहाँ पे एलसीएम आया तो 5 minus 4 1/5 रिमेन रहेगा. और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 plus 4 क्या हो जाएगा आपका 9/5. ये आपका 5 कैंसिल, यहाँ पे लॉग है 1/2 log ऑफ. ओके, सेम इस साइड में भी हो जाएगा 1/2 log ऑफ. यहाँ पे 13 plus 12 तो क्या आ जाएगा आपका 25/13. 13 minus 12 so 1/13. ये आपका हो गया 1/2. 5 ऑलमोस्ट कैंसल. 1/, here log of 1/9. is equals to 1/2 log of 25 अपॉन 1 किया. log 1 की वैल्यू 0 ही हो जाती है. यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे 1/2 log 1 minus log 9 which is equals to minus 1/2 log of 9. log 1 की वैल्यू 0 रहती है, इसके लिए मैंने वो लिया नहीं. और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 25. मैं ऊपर आपका ये रफ करके आंसर लिखती हूँ. ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है. क्वाड्रेटिक में रिड्यूस होने के बाद ए बी सी से कंपेयर करो, यू विल गेट दिस. एंड इन लास्ट आई गेट माई सोल्यूशन. दैट सोल्यूशन इज व्हाट, सोल्यूशन इज व्हाट x is equals to 1/2 minus 1/2 log of 9 is equals to 1/2 log of 20. और करके है ये. तो ये है आपका आंसर. बाय दिस वे यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन. यहाँ पे हमें उन्होंने खाली सॉल्व द इक्वेशन के लिए दिया था. सॉल्व करना है मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. फॉर दैट आई डिवाइड थ्रू आउट बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स. आफ्टर दैट व्हाट आई डिड कि वहाँ पे जो सेक हाइपरबोलिक की टर्म थी आई कन्वर्ट इट इनटू 1 minus tan square. आफ्टर दैट हमने क्या किया कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या किया यहाँ पे कि जस्ट उसे सॉल्व किया. ओके, कि x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² minus 4ac अपॉन 2a. सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ फॉर tan हाइपरबोलिक. एंड आफ्टर दैट tan हाइपरबोलिक इनवर्स के लिए फॉर्मूला था कि 1/2 log of 1 plus x डिवाइडेड बाय 1 minus x.
क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे tan हाइपरबोलिक की डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी आती, दैट्स वाई आई यूज इट। ओके, और फिर उसे अगर हमने सॉल्व किया, आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। ये से हमको आंसर निकालना है। एग्जाम्पल सॉल्व करने की मेथड बहुत इजी है। ओके, एंड सिंपल मेथड है, खाली आपको क्या करना है, फॉलो करते जाना है हर एक मेथड को। और एक टाइप है, देखो इसी टाइप का और एक एग्जाम्पल है। आई जस्ट सॉल्व इट इन अनदर वे। कितने टाइप से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी उन्होंने पूछा है कि फाइंड द tan हाइपरबोलिक एक्स। एग्जाम्पल तो सेम है, खाली जो हमें फाइंड करना है ना वो टर्म्स अलग है। If value sin hyperbolic x minus cos hyperbolic x is equal to find tan hyperbolic x। क्या क्या दिया है देखो उन्होंने हमें कि फाइंड sin hyperbolic x minus cos hyperbolic x and I want to calculate tan hyperbolic x। There is one shortcut method to calculate here such a types of example। हमें क्या दिया है, sin hyperbolic x है, मेरे पास cos hyperbolic x है। I just substitute, मुझे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है कि e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन माइनस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। सॉल्व करो एलसीएम, यहाँ पे 2 उस साइड में जाएगा, 5 ई रेज टू एक्स माइनस 5 ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो 5 माइनस एक ई रेज टू एक्स मतलब 4 ई रेज टू एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा 6 ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 करो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 ई रेज टू एक्स माइनस और 3 ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 हो गया। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू एक्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स 3 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। ये 5 को मैं इस साइड ले लेती हूँ, 5 इंटू ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 0। सो व्हाट आई गेट ई रेज टू 2x माइनस 3 माइनस 5 ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ई रेज टू एक्स। क्वाड्रेटिक है ना, तो कंपेयर करो, किसके साथ में कंपेयर करूंगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो। a क्या मिल गया मुझे 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -3, e रेज टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपका b मेरा -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -4ac
डिवाइडेड बाय 2a, 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 4। मैं इसे आगे लेती हूँ। दिस इज नथिंग बट 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। मतलब यहाँ पे मुझे और दो मिलेंगे कि e रेज टू x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 e रेज टू x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। सो e रेज टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4। सो क्या होगा 3 और e रेज टू x इज इक्वल टू 5 मीन्स -2 मतलब क्या हो गया -1/2। सो टेक log ऑन बोथ साइड। लॉग लिया तो क्या होगा e को log कैंसिल हो जाएगा x इज इक्वल्स टू log ऑफ 3 और x इज इक्वल्स टू log ऑफ -1/2। ओके, ये क्या हो गया आपका आंसर। देखो ये एक मेथड है। उन्होंने तो हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, टैन हाइपरबोलिक बोला है। देखो अभी हम आगे सॉल्व करते हैं सेम एग्जांपल में। इफ आई वांट टू सॉल्व दिस एग्जांपल, सो मैं यहाँ पे x की वैल्यू इस तरह से निकालूंगी। अभी मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ। बिफोर दैट आई जस्ट हियर रफली आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया। आई जस्ट सब्स्टिट्यूट, आई रिप्लेस माई साइन हाइपरबोलिक फंक्शन बाय व्हाट एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल से मैंने सॉल्व किया और उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए आई मल्टीप्लाई हियर बाय e रेज टू x। इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। आई जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट। अभी उन्होंने मुझे इतना नहीं बोला है कि इतना x तक फाइंड आउट करो। दे टोल्ड मी दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैन हाइपरबोलिक। सो टैन हाइपरबोलिक में फाइंड आउट करती हूँ। इससे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन हाइपरबोलिक फंक्शन। क्या आती है आपकी टैन हाइपरबोलिक की फॉर्मूला क्या है, दैट टैन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e रेज टू x माइनस e रेज टू -x e रेज टू x प्लस e रेज टू -x। ये है आपका हाइपरबोलिक का फॉर्मूला। तो मैं एज आई नो देर आर टू वैल्यूज फॉर e रेज टू x, either e रेज टू x इज इक्वल टू 3 and e रेज टू x इज इक्वल टू -1/2। पुट करो क्या आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 3 माइनस e रेज टू माइनस मतलब क्या आ जाएगा 1/3। ये आपका 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सो 8/3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10/3। 3 विल गेट कैंसल आउट। क्या रिमेन रहेगा आपका 8/10। दिस इज नथिंग बट व्हाट 4/5। tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 4/5। सेम हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे कि tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू -1/-1/-1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/-1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये भी -1/2 और ये क्या हो जाएगा आपका -2/1।
एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2, और यहाँ पे -1 + 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 - 4/2 इज इक्वल टू, अभी मैं नीचे का रफ कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3/2 डिवाइडेड बाय -5/2, 2 विल गेट कैंसिल आउट, -3/5 tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 3/5। देखो हमें दो वैल्यू मिल गई tan की, जो उन्होंने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोली थी। हमें यहाँ पे खाली x की वैल्यू निकाल के रुकना नहीं है, तो आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट, tan हाइपरबोलिक x। tan हाइपरबोलिक x निकालने के लिए फर्स्ट आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ e raised to x and then calculate further the value of tan hyperbolic x। इसी वे को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, एंड आई जस्ट सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल बाय दिस वे। बहुत सारे टाइप मीन्स इसमें पूछा जाता है फाइंड द tan हाइपरबोलिक x, कैसे कैलकुलेट करना है, तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट tan हाइपरबोलिक x। अब ये रफ कर देती हूँ मैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऑन आर बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। Prove that cos hyperbolic inverse x is equal to log of x plus under root of x square plus 1। ओके, आई वॉन्ट टू प्रूव दिस। मैं क्या करती हूँ, LHS को कंसिडर कर लेती हूँ कि y इज इक्वल टू, कंसिडर करती हूँ cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos हाइपरबोलिक y हो जाएगा। पर एज आई नो, मैं यहाँ पे इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एज आई नो कि x इज इक्वल टू cos के लिए क्या है, e रेज टू y प्लस e रेज टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू e रेज टू वाई प्लस e रेज टू माइनस 1। ओके, डिवाइड बाय, और डिवाइड से बेटर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय e रेज टू वाई किया तो क्या हो जाएगा आपका 2x e रेज टू वाई। इसे सबको इस साइड में ही लेते हैं, e रेज टू वाई इंटू e रेज टू वाई, e रेज टू वाई इंटू e रेज टू वाई इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आपका 2x e रेज टू वाई माइनस e रेज टू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा -1 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। सबको -1 से मल्टीप्लाई करो, e रेज टू 2y माइनस 2x e रेज टू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ इट इज क्वाड्रेटिक है, किसमें है, e रेज टू y में। सो कंपेयर विथ
ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा आपका? a इज 1, b इज 2x एंड c इज 1। e⁻y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? माइनस ऑफ 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज e⁻y। इस साइड में लिखती हूँ e⁻y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 को डिवाइड करेंगे तो x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे माइनस डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा e⁻1। ओके, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग को अगर अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1। ओके, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। सो यहाँ पे क्या हो जाता है? फॉर लॉग कंसीडर only positive value. Okay, so y is equals to log of x under root of x² minus 1। पर मेरा y क्या था? y था मेरा cos hyperbolic inverse x is equal to log of x plus under root of x² minus 1। ओके, तो ये आपका क्या क्या आंसर। बाय दिस वे वी कैन सॉल्व सो मेनी एग्जाम्पल्स। ये है एक ओके इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को यूज़ करके आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।